یسوع مسیح کے عظیم بابرکت نام میں آپ سب کو سلام. میں ہوں پاسٹر منور خورشید. پروگرام کلام روشنی میں ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں گزشتہ تمام پروگرامز کے لیے، آپ کے اچھے فیڈ بیک کے لیے. جس انٹرسٹ کے ساتھ آپ ان پروگرامز کو واچ کر رہے ہیں ہمارے لیے بڑی حوصلہ افزائی کی بات ہے. اور آپ سب جس طور سے اس کلام کا حصہ بن رہے ہیں اور اس کو پھیلا رہے ہیں، ہم اس کے لیے بھی خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں. آج دوسرے سیزن کا یہ 88واں پروگرام ہے جس میں ہم خدا کے کلام کی سچائیوں کو جانیں گے، سیکھیں گے، اور جن خدام نے آج ہمیں جوائن کیا ہے خدا کے کلام کی سچائیوں کو ہم تک پہنچانے کے لیے، مختصراً تعارف آپ کے ساتھ کرواتے چلیں. ہمیں جوائن کیا ہے ریورنڈ وسیم اللہ کھوکھر صاحب نے. تھینک یو سر. تھینک یو سو مچ. اور ان کے ساتھ پاکستان بائبل سوسائٹی کے جنرل سیکرٹری اینتھنی لیمل صاحب. تھینک یو سو مچ. اور ان کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے ایف جی اے بائبل کالج کے وائس پرنسپل طارق وارث صاحب نے. تھینک یو سو مچ. ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم آج کے متن کی تلاوت کریں، میں ریکویسٹ کروں گا طارق وارث صاحب سے پلیز دعا میں رہنمائی کریں. آسمانی باپ، ہم خداوند یسوع مسیح کے جلیل القدر اور مبارک نام میں تیری حضوری میں آتے ہیں اور تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ اپنے پاک روح کے وسیلے سے ہمیں ہدایت اور قوت بخش، تاکہ آج کی گفتگو پرمعنی، مؤثر، مفید اور بابرکت ہو. یسوع مسیح کے نام میں آمین. تھینک یو سو مچ. ناظرین، کلام مقدس میں سے اپنی رہنمائی کے لیے ہم پڑھیں گے مقدس مرقس رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 16واں باب، پہلی 8 آیات. خدا ان کے زندگی بخش پاک کلام میں یوں مرقوم ہے: جب سبت کا دن گزر گیا تو مریم مگدلینی اور یعقوب کی ماں مریم اور سلومی نے خوشبودار چیزیں مول لیں تاکہ آ کر اس پر ملیں. وہ ہفتے کے پہلے دن بہت سویرے جب سورج نکلا ہی تھا قبر پر آئیں اور آپس میں کہتی تھیں کہ ہمارے لیے پتھر کو قبر کے منہ پر سے کون لڑھکائے گا. جب انہوں نے نگاہ کی تو دیکھا کہ پتھر لڑھکا ہوا ہے، کیونکہ وہ بہت ہی بڑا تھا. اور قبر کے اندر جا کر انہوں نے ایک جوان کو سفید جامہ پہنے ہوئے داہنی طرف بیٹھے دیکھا اور نہایت حیران ہوئیں. اس نے ان سے کہا، ایسی حیران نہ ہو، تم یسوع ناصری کو جو مصلوب ہوا تھا ڈھونڈتی ہو. وہ جی اٹھا ہے، وہ یہاں نہیں ہے. دیکھو، یہ وہ جگہ ہے جہاں انہوں نے اسے رکھا تھا. لیکن تم جا کر اس کے شاگردوں اور پترس سے کہو کہ وہ تم سے پہلے گلیل کو جائے گا. تم وہیں اسے دیکھو گے جیسا اس نے تم سے کہا. اور وہ نکل کر قبر سے بھاگیں، کیونکہ لرزش اور ہیبت ان پر غالب آ گئی تھی، اور انہوں نے کسی سے کچھ نہ کہا کیونکہ وہ ڈرتی تھیں. کلام مقدس کے پڑھے سن جانے پہ خداوند کی برکت ہو. آمین. ناظرین، خداوند یسوع مسیح کی مصلوبیت اور تدفین کے بعد تیسرے دن خداوند یسوع مسیح اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھے ہیں. یہ مسیحیت کے لیے ایک بڑے آنر، استحقاق اور عزت کی بات ہے کہ ہم اس بات پہ ایمان رکھتے ہیں، اور اس کے بغیر ہمارا ایمان ادھورا، ہماری تعلیمات ادھوری ہیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا ہمارے لیے ایک ایمان کی بنیاد ہے جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں، اور اسی کے مطابق ہم اپنی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں. بائبل مقدس کی اہم سچائی مسیحیوں کے لیے مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا ہے. اس تعلق سے بہت ساری سچائیاں ہیں جن کو جاننا ہمارے لیے از حد ضروری ہے. سب سے پہلے ریورنڈ وسیم اللہ کھوکھر صاحب سے جانیں گے. سر، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. یہاں پہ ذکر ہے کہ خواتین جو ہیں خوشبودار چیزیں لائی ہیں. روایت کیا ہے ان خوشبودار چیزوں کے لیے جو یہودیوں کے ہاں سیلیبریٹ کی جاتی تھی یا ان کو رسم کے طور پہ منایا جاتا تھا؟ تھینک یو ویری مچ بھائی صاحب. یہ سوال اس لیے اہم ہے کہ اس کی وجہ سے بہت ساری غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہیں. میں آپ کے سوال کو ایڈریس کروں گا 3 طرح سے. پہلے میں
इसको देखूंगा इसके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में कि तारीखी तौर पर ये क्या था, फिर हम इसको देखेंगे बिब्लिकल पर्सपेक्टिव में कि बाइबल मुक़द्दस इसके बारे में क्या रही है, और फिर उसके बाद हम देखेंगे इसको क्रिश्चियन पर्सपेक्टिव में, तो क्रिश्चियन फेथ इसके बारे में क्या कहता है। ये एक लफ्ज़ है इब्रानी ज़बान में हन्नात। हन्नात जो है इसको हम खुशबू कहते हैं, और यहाँ से एक आर्ट निकला है जिसको हम हनूतकारी कहते हैं। हनूतकारी होता है लाशों में खुशबू भरने का आर्ट, और ये तारीखी तौर पर शुरू हुआ था मिस्र से, जब वो ममीज को प्रिजर्व करते थे। और उस वक्त ये होता था कि ये इतना अहम शक्ल इख्तियार कर गया था कि ये उनके ईमान का हिस्सा इसलिए बन गया, वो ये महसूस करते थे कि हमारे ये जो जिस्म है इनको प्रिजर्व करना, सदियों तक प्रिजर्व करना जो है ये ज़रूरी है, क्योंकि एक वक्त आएगा कि ये जिस्म जो है हमारी रूह इनमें वापस आएगी और यही जिस्म जो है दोबारा से इस दुनिया में काम करेंगे। सो ये एक अकीदा था जो इजिप्शियंस का अकीदा था। इस वजह से ये जो हनूतकारी का आर्ट है ये इसने एक ऐसी अहम शक्ल ले ली कि उसके बाद जितने भी अहम लोग थे जो अपनी लाश को प्रिजर्व कर सकते थे, तो उसका वो सारा एक तरीका था, बड़ा लंबा तरीका है ये, इसमें काफ़ी अरसा लगता था इसको प्रिजर्व करने के लिए। तो ये सदियों तक ये जो ममीज़ हैं इनको प्रिजर्व किया जा सकता था, और ऐसी मिसालें तारीख में हमें मिलती हैं कि इजिप्शियंस में बहुत सारी ममीज़ जो हैं, इवन फ़िरौन की ममीज़ जो हैं वो भी हमें मिलती हैं, और बड़े अमीर अमीर लोग जो थे इसको खुशबू भर के, इसको सारे आर्ट को हनूतकारी कहते हैं, जो मिस्रियों के ईमान का हिस्सा था। अब यहाँ से जब मिस्र में याकूब का पूरा ख़ानदान था, और याकूब और यूसुफ जो थे इनकी बॉडीज़ को भी प्रिजर्व कर दिया गया था। अब यहाँ पर एक गलत फहमी पैदा हो सकती है कि क्या खुदा के ये जो लोग हैं, याकूब जो इसराइल जिसका लक़ब है, और उसका बेटा जो मिस्र का हुक्मरान भी रहा, उनकी बॉडीज़ को भी खुशबूदार चीज़ें लगा कर महफूज कर लिया गया था। लेकिन नाजरीन, आप यहाँ ये ज़रूर समझ लें कि यहाँ हनूतकारी इसलिए नहीं हुई कि इनका मिस्री ईमान था, नहीं, इसलिए कि ये परदेश में थे, इनका वो मुल्क नहीं था। इनकी जिस्मों को, डेड बॉडीज़ को लेकर इन्होंने उस वक्त वापस जाना था जब उन्होंने वापस जाना था, मुल्क मिस्र से निकल के उन्होंने अपने मुल्क में जाना था। और इसलिए उन्होंने, अगर आप पैदाइश की किताब उसके 50वें बाब की 12वीं आयत में देखें तो वहाँ पर इन दोनों की लाशों को महफूज कर लिया गया, और जब ये निकले हैं, काफ़ी 100 साल के बाद निकले हैं, काफ़ी सदियां हो गई हैं, लेकिन ये प्रिजर्व्ड लाशें जो हैं ये लेकर वो अपने मुल्क में वापस आए हैं। सो इनके पीछे मिस्री फेथ नहीं था, लेकिन ये उनको बॉडीज़ को प्रिजर्व करने के लिए। इसी तरह से बाइबल मुक़द्दस का जो पर्सपेक्टिव है वो ये है कि खुदावंद यीशु मसीह को भी प्रिजर्व करने की कोशिश की गई। और जैसे कि जानते हैं कि ये जो अरमतिया का यूसुफ है, ये खुदावंद यीशु मसीह के लिए बहुत अकीदत तो रखता है, लेकिन ईमान की हद तक नहीं है अभी। और ऑफ कोर्स वो ये जानता है कि ये जो कुछ हो रहा है ये खुदावंद यीशु मसीह के साथ ये पूरा जस्टिस नहीं हो रहा। सो इसलिए उसने अपनी अकीदत के इजहार में खुदावंद यीशु मसीह की बॉडी को भी ये लगाया है। और ये ख़वातीन जो हैं ये फील कर रही हैं, इसके पीछे 2-3 चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि आप उस वक्त ये था कि आप किसी भी वक्त जाके उस पत्थर को लुढ़का के तो आप दोबारा से उसको खुशबू लगा सकते हैं ताकि बॉडी जो है वो ज़्यादा देर प्रिजर्व की जाए। और दूसरा ये है कि ये ख़वातीन जो है इनको मौका नहीं मिला कि ये अपनी मोहब्बत निछावर कर सकें अपने खुदाबंद के ऊपर। शायद ये इसलिए जा रही हैं कि उस वक्त तो सैबत शुरू हो रहा था जब उसकी लाश को रखा जा रहा था कब्र में, और उस वक्त निकोदेमस और अरमतिया के यूसुफ ने ये सब कुछ किया है। और यहाँ पर ये ख़वातीन जो है एक तो अपनी अकीदत के लिए जा रही हैं, और एक चाह रही हैं, ये भी इस इल्म में नहीं है कि खुदा यीशु मसीह ज़िंदा हो जाएगा, लेकिन ये प्रिजर्व करने के लिए जा रही हैं कि ज़्यादा देर
उसकी लाश को जो है वो प्रिजर्व किया जाए, यह है। और अगर आप खुदा यसु मसीह की ज़मीनी ज़िंदगी में देखें तो लाजर की लाश को खुशबू नहीं लगाई गई थी, और यही वजह है कि वो 3 दिन के बाद बदबू आ गई, 4 दिन के बाद बदबू आ गई, और उसकी बहनों ने कहा था कि नहीं खुदावंद अब तो उसमें से बदबू आ रही है, क्योंकि उनको प्रिजर्व नहीं किया गया था। सो बाइबल में ऐसी चीज़ें मिलती हैं, और ये एक अकीदत के तौर पर है। यहाँ मैं एक क्रिश्चियन पर्सपेक्टिव ज़रूर अपने नाज़रीन के लिए और हम सब के लिए देना चाहता हूँ। वो ये है कि हमारा ईमान ये है कि हमारी ये जो बॉडी है, जब रूह इसमें से निकल जाएगी तो ये डेड बॉडी हो जाएगी, ये ज़मीन के साथ मिल जाएगी, ये मिट्टी बन जाएगी, और बाइबल कहती है तो खाक है और खाक ही में लौट जाएगा। और जब हम इसका कमिटल करते हैं, जब हम जनाजा करते हैं, तो उसमें कहते हैं मिट्टी से मिट्टी, खाक को खाक और राख को राख, ऐसे करके हमारे ईमान के मुताबिक हमें ये जिस्म की परवाह करने की ज़रूरत नहीं है मरने के बाद। मसीही ईमान इन बॉडी से रहा है, आज़ाद है, क्योंकि हमें एक जलाली बदन दिया जाएगा करंथियों 15 बाब के मुताबिक। इसलिए जब जनाजा होता है तो बहुत सारे लोग फूल लेकर और पत्तियां लेकर और खुशबू लेकर वो कब्र पे डालते हैं। चले वो अकीदत की तौर पर तो किया जा सकता है, लेकिन ईमान की हद तक हम नहीं जा सकते, क्योंकि कब्रों के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। ना ही हम दोबारा फूल चढ़ाते हैं, ना ही हम दोबारा खुशबू लगाते हैं, ना ही हम बॉडी को प्रिजर्व करते हैं। मसीही ईमान ये कहता है कि जब रूह अलहदा हो गई है तो फिर उस जिस्म का कोई अमल दखल नहीं है हमारे ईमान के साथ। वो डेड बॉडी है और वो ज़मीन है, ज़मीन के साथ मिल जाएगी, मट्टी है, मट्टी में मिल जाएगी। लिहाजा मसीहियत में ना तो बॉडी प्रिजर्व करने का रवाज है, ना ही हर वक्त खुशबू लगाने का रवाज है। एक अकीदत है, जब लोग आते हैं तो वो रीत और ये सारी चीज़ें ले आते हैं, फूल झूल चढ़ा देते हैं, इस हद तक तो ठीक है, लेकिन हमारा मुर्दों के साथ किसी किस्म का कोई लिंक नहीं है, ना हमारा ईमान है। क्यों? इसलिए कि हमारा खुदावंद यसु मसीह जी उठा है, और उसके जी उठने से हम भी वही बदन हासिल करेंगे जिसे जलाली बदन कहा जाता है। प्रेज गॉड, थैंक यू सो मच। बड़ी ही खूबसूरत बातें, और ख़ास तौर पे जितनी रिस्पेक्ट जनाजे के वक्त तक की जाती है, चूँकि हम इकरार भी करते हैं किसी ईमानदार के लिए, जब फ्यूनरल में शामिल होते हैं तो कहते भी हैं कि इस जस्ते खाकी को रूहुल कुद्स ने अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया है। हम उस वक्त तक रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन जैसे ही हम उसे दफना देते हैं तो उसके बाद हमारा ये अकीदा, ईमान, बाइबल मुकद्दस की तालीम है कि वो मिट्टी के साथ मिट्टी हो जाता है, और उसके बाद जो हमें चूँकि मुर्दे जी उठेंगे, और जो मसीह पर ईमान रखते हुए सो गए हैं वो जब जी उठेंगे तो उनको जो बदन मिलेंगे वो बदन नहीं मिलेंगे जिसके साथ वो दफनाए गए हैं। सो इसलिए बहुत हद तक हम एफर्ट भी करते हैं, कोशिश करते हैं लोगों तक इस बात को पहुंचाएं कि खुदारा अपने बहुत दफ़ा हम ऐसी चीज़ों को अडॉप्ट कर रहे होते हैं जो हमारे कल्चर में चल रहे, इर्द गिर्द नज़र आ रही होती हैं, और हम बहुत दफ़ा मिसालें भी दे रहे होते हैं कि वो तो ऐसे करता है, फलां तो ऐसे करता है, हम नहीं ऐसे करते हैं। तो हमें इसलिए नहीं करना क्योंकि हम वो नहीं हैं, और ना हमें वो बनने की ज़रूरत है। हम मसीही हैं, और मसीही अकीदा हमारा है, और मसीही ईमान पे हम चलते हैं। बाइबल मुकद्दस वाज़े इस ताल्लुक से तालीम देती है। सो इसलिए हमें कुछ और बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो हम हैं वो दुनिया बन नहीं सकती है, जो कुछ हमें खुदा ने बनाया है। सो इसलिए चाहिए कि हम ऐसी एग्जाम्पल सेट करें कि लोग हमें फॉलो करें, ना कि हम लोगों की एग्जाम्पल्स के पीछे भागते फिरें। सो कब्रों पे फूल चढ़ाना, कब्रों के ऊपर जाकर रोना धोना, मातम करना, ये सब कुछ हमारे ईमान का हिस्सा नहीं है। बाइबल मुकद्दस इस बारे में तालीम नहीं देती है, और मुकद्दस पौलुस तो थिस्सलुनीके की कलीसिया को लिखते हुए बयान करते हैं कि औरों की मानद गम ना करो। इसका मतलब है कि जब हम इस तरह से गम करते हैं तो हम औरों में शुमार किए जाते हैं, ना कि ये ईमानदारों का एटीट्यूड और ना ही ऐसा रवैया है। सो अच्छा है कि जिस तौर से हमें सिखाया जा रहा है, रेवरेंड वसीमुल्लाह कोकर साहब ने भी इस पे खासी रोशनी डाली है। हमारा सबका भी जो मतमाए नज़र है वो यही है कि हमें ज़रूर ऐसी चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए, गुरेज करना चाहिए, ताकि हमारा ईमान जो है ये दुनिया को नज़र आए, ना कि दुनिया की मिसालें दे देकर हम अपनी रवायात को तब्दील कर लें, अपने ईमान में किसी तरह की कोई तब्दीली ले आएँ। हमारे साथ रहिए। यहाँ पे वक्त एक ब्रेक का हम लेंगे, एक शॉर्ट ब्रेक। देखते रहिए कलाम रोशनी।
वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कलाम रोशनी। ब्रेक पर जाने से पहले बड़ी खूबसूरत बातें रेवरेंड वसीमुल्लाह खोखर साहब हमारे साथ शेयर कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे और एंथनी लेमुल साहब से जानेंगे। सर, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं, इस पे दो राय तो है नहीं है। हफ्ते के पहले दिन का मतलब इतवार है, इतवार को वो जी उठे हैं, सब इस बात पे ईमान रखते हैं, चारों मुसन्निफीन भी बयान करते हैं। अब एक बात, अगर चूँकि टेक्स्ट की बात पूछनी हो तो हम ज़रूर ही आपसे रब्ता भी करते हैं, चूँकि और मैं नाजरीन से भी कहूँगा क्योंकि बाइबल सोसाइटी बड़ी इस ज़िम्मेदारी को निभा रही है और बड़े ज़िम्मेदाराना तरीके से वो टेक्स्ट की जो ट्रांसलेशंस हैं उनका काम सर अंजाम देते हैं। सो किसी भी तरह की आपकी कोई क्वेरी हो, कोई भी सवाल हो इस ताल्लुक़ से, तो ज़रूर बाइबल सोसाइटी से रब्ता करें। इसलिए आज हमने ख़ास तौर पे मदऊ किया है। सर, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं टेक्स्ट को मद्देनज़र रखते हुए कि कोई टाइम फ्रेम सामने आ सकता है जिससे हम ये कह सकें कि इस वक्त खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। अच्छा, एक तो मैं रिपीट करना चाहता हूँ कि जब भी टेक्स्ट में आता है ना कि हफ्ते का पहला दिन जो बात हो चुकी है और या अगला दिन या नेक्स्ट डे, ये हमेशा ग्रीक के मुताबिक ये संडे ही समझा जाता है। तो इसकी तो आपने तस्दीक कर दी। दूसरी बात एक और, ये जब हम तर्जुमा करते हैं, एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट, विच मीन्स अगर वाजिया नहीं है तो हम खामखा उसको वाजिया नहीं करने की कोशिश करते हैं। ये दुरुस्त बात नहीं है। और अगर जहाँ पे खामोशी होगी किसी बात पर तो हम जब तर्जुमा करते हैं वो हम खामोशी को रखते हैं वैसे ही। और ये अब जो तफसीर है वो कोई भी स्पीकर अपने हिसाब से कर लेता है, लेकिन चूंकि मतन की बात होती है फिर यूनानी को इब्रानी को सामने रख कर किया जाता है। मैं एक दो बातें जो हमें इशारे मिलते हैं मैं उसकी तरफ ही रोशनी डालूंगा। बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि 4:05 पर या 5:10 पर सुबह, ऐसी कोई टेक्स्ट नहीं है। ठीक है, सो क्लियर होगी ये बात। कुछ उलमा का ख्याल है, ये ख्याल है, बाइबल में टेक्स्ट नहीं है। कुछ ख्याल करते हैं कि अगर एक अंदाज़ा हो कि अगर 30 ईस्वी में जी उठे तो समझते हैं कि ये 7 अप्रैल होगी। अगर 31 है तो फिर ये 14 अप्रैल पड़ता है, और अगर ये 33 है तो 3 अप्रैल है। लेकिन ज़्यादातर तसव्वुर ख्याल जो उलमा का है, जो उनकी अपनी तहकीक पर है, बाइबल का टेक्स्ट नहीं है, मैं क्लियर कर दूँ, वो कहते हैं कि ग़ालिबन ये 30 है ईस्वी और ये 7 अप्रैल है। ठीक हो गया। अब दूसरी बात, जो ग्रीक टेक्स्ट है जिसमें न्यू टेस्टमेंट नया लिखा गया, वो जिक्र करता है कि दिन चढ़ रहा था, यानी लाइट स्टार्ट हुई थी, पॉप फूटी थी, रोशनी शुरू हुई थी। ओके, अब ये बड़ा मुश्किल है समझना। अगर आप रोमी दिन रखेंगे तो सनराइज से स्टार्ट होता है दिन, अगर यहूदी लेंगे तो वो सनसेट से, सूरज गुरूब होने से शुरू होता है। ठीक हो गया। अब क्लियरली कोई वाजिया नहीं है। एक चीज़ बड़ी क्लियर है जो मरकज़ के ख़त में है कि सूरज निकला ही था, मरकुस की इंजील। ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, सॉरी ख़त में नहीं, सॉरी इंजील, यहाँ बड़ा क्लियर लिखा हुआ है सूरज निकला ही था। मैं कोशिश कर रहा था, कल नेट पे चेक किया मैंने, कल की डेट में इसराइल में सूरज 5:36 पर निकला, और कल की डेट में लाहौर में 5:01 पर सूरज निकला, तलु हुआ, जो आपको मिल जाती है इंफॉर्मेशन। अब अगर यहाँ से अंदाज़ा लगाएं तो डेफिनेटली सूरज से पहले ही है, तो हो सकता है 5 बजे हो, 5:30, ये कह नहीं सकते वसूख से, लेकिन ये सुबह सुबह हुआ, ये क्लियर है। और बहुत से चर्चेज में लोग ड्रामा करते हैं मसीह के जी उठने का, ख़वातीन जा रही हैं तो वो भी सनराइज सर्विस भी करते हैं उसको। बहुत से चर्चेज हैं जो या पहाड़ियों पे चले जाते हैं, अगर साहिल पर हैं तो साहिल पे चले जाते हैं, तो वो सूरज के निकलने पर ही इबादत करते हैं, सुबह की सनराइज सर्विस। सो मैं बड़ी क्लियरली कहना चाहता हूँ कि एज सच वहाँ नहीं लिखा हुआ किसी भी टेक्स्ट में अंजील के अंदर के ये टाइम है। हम मतन से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सूरज निकला ही था, जिसका ये मतलब है कि बहुत अर्ली मतलब सुबह सुबह ये मसीह जी उठे। तो और मैंने आपको अंदाज़ा दिया है कि इसराइल में कल जो दिन सूरज चढ़ा वो 5:36 पे चढ़ा, लाहौर में 5 बजे। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हो सकता है 5 बजे, हो सकता है 4:45 बजे, शायद 4 बजे, 4:30 बजे। तो ये अंदाज़ा है, ये कोई हतमी आयत नहीं है। हम और ना मेरी दरख्वास्त है कि इस तरह से कोई अपना हिसाब किताब लगा के तो हतमी फैसला ना करें, कलाम की आयात को देखें, ये बड़ा ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। अलल सुब खुदावंद यीशु मसीह इतवार वाले दिन मुर्दों में से जी उठे,
اور اینتھنی صاحب کی یہ بات مجھے بڑی ہی خوبصورت لگتی ہے کہ وہ کبھی بھی اندازوں پہ نہیں جاتے ہیں کیونکہ ان سے حساب کتاب بڑا لیا جاتا ہے. سو بڑی اچھی اور خوبصورت بات ہے کہ جو کچھ ہمیں ٹیکسٹ بتا رہا ہے ہم اس کے اندر رہیں, اور اگر کہیں اشارہ کوئی ملتا ہے تو ضرور اس کی ریسرچ کی جا سکتی ہے, تحقیق کی جا سکتی ہے, لیکن اس پہ حتمی رائے دینا جو ہے وہ کسی کے بس میں نہیں ہے اور نہ کوئی دے سکتا ہے, نہ ہی ہمیں کبھی اس طرح کی باتوں پہ بلیو کرنا چاہیے. خداوند یسوع مسیح تیسرے دن اپنے کہنے کے مطابق جس طور سے خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھیں گے, اور ایسا ہی ہوا, خداوند یسوع مسیح تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے. بہت سارے لوگ کنفیوز رہتے ہیں اگر جمعے کو خداوند یسوع مسیح نے اپنی جان دی ہے, اتوار والے دن تک کیسے 3 رات دن پورے ہوتے ہیں, کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے ایک اشارہ بھی دیا مقدس متی رسول کی معرفت لکھے گئے انجیل بیان کے 12ویں باب کی 40ویں آیت میں کہ جس طور سے یونا 3 رات دن زمین کے مچھلی کے پیٹ میں رہا, اسی طور سے ابن آدم زمین کے اندر رہے گا, تو کس طرح سے یہ 3 رات دن پورے ہوتے ہیں. اس لیے بھی کنفیوز رہتے ہیں کیونکہ ہم آج کے ٹائم فریم کے مطابق ایک تو دنوں کو کنسیڈر کرتے اور سمجھتے ہیں اور سمجھنا بھی چاہتے ہیں, اور کئی دفعہ ہم غلط کیا سرائی بھی کرتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں سمجھ نہیں آتی. بڑا ہی آسان ہے سمجھنا اگر ہم سمجھ جائیں. یہودی جو کلچر ہے ان میں جو دن کا آغاز ہے یہ شام 6 بجے ہوتا ہے. یہ بات سمجھ لیں, یہودی دن کا جو آغاز ہے یہ شام 6 بجے. جیسے سبت کا دن ان کا شروع ہونا ہے, تو جیسے ابھی ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں سیکھا بھی ہے, ہمیں ریورنڈ وسیم اللہ کھوکھر صاحب بتا رہے تھے جس طور سے کہ یہ سبت شروع ہونے سے پہلے جو تیاری کا دن ہے, یعنی ابھی سبت تو 6 بجے شروع ہو جانا ہے, شام 6 بجے ان کا اگلا دن شروع ہو جاتا ہے. جیسے ہمارے آج شام 6 بجے تو عام روٹین کا وہی دن چل رہا ہے, اور ڈیٹ جو ہے رات 12 بجے چینج ہوگی, لیکن یہودیوں کے ہاں ایسا نہیں ہے. 3 بجے اگر خداوند یسوع مسیح نے اپنی جان دی ہے تو یہودی انسائکلوپیڈیا کے مطابق اگر دن کا اتنا حصہ باقی ہے تو اسے 1 دن اور 1 رات کنسیڈر کیا جائے گا. جیسے جمعے کے دن خداوند یسوع مسیح نے اپنی جان دی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جان دینے سے لے کے چونکہ 6 بجے سبت کا آغاز ہونا ہے, اس وقت تک خداوند یسوع مسیح کو 1 رات اور 1 دن مکمل ہو چکے ہیں. اور اسی طور سے اگر آپ سمجھ رہے ہیں تو سبت کا جو دن کا آغاز ہوا ہے شام 6 بجے, تو اس سے لے کے یعنی ابھی ہمارا تو جمعہ ہی ہے لیکن ان کا ہفتہ سٹارٹ ہو گیا ہے. ہفتے کی شام 6 بجے سے لے کے یہودیوں کے مطابق ان کے جو اتوار کا دن آغاز ہونا ہے, اور ہمارا ہفتہ ہمارے ہفتے تک اور ان کے اتوار تک خداوند یسوع مسیح کو 2 دن 2 راتیں مکمل ہو جاتی ہیں. اور اسی طور سے جب سبت کا دن ختم ہوتا ہے اور اتوار کے دن کا آغاز ہوتا ہے جو شام 6 بجے ہے ان کے مطابق, اور ہمارے مطابق اتوار کا جو دن ہے وہ چونکہ 12 بجے کے بعد شروع ہوگا. یہودی جو ٹائم فریم ہے اس کے مطابق خداوند یسوع مسیح جو ہیں یہ اب سبت کا دن ختم ہو گئے, یعنی 2 دن 2 راتیں کمپلیٹ ہو گئی ہیں, اور اب اس کے بعد جتنے پہر خداوند یسوع مسیح قبر میں ہیں وہ بھی اب پورا 1 دن اور 1 رات کنسیڈر ہوگا. کیونکہ ابھی ڈسکس کر رہے ہیں کہ صبح خداوند یسوع مسیح جی اٹھے, تو اس کا مطلب ہے کہ شام 6 بجے سے لے کے اگر ہم 4 بجے بھی صبح کنسیڈر کریں کہ 4 بجے یا 5 بجے یا 3 بجے یسوع مسیح جی اٹھے, تو اس کا مطلب ہے کہ 1 رات اور 1 دن جو ہے وہ اس دن بھی پورا ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے خداوند یسوع مسیح کے جو ان کا قول تھا, جو ان کا کہنا تھا کہ وہ 3 رات دن زمین کے اندر رہیں گے, تو اس بات کو انہوں نے بالکل ویسے ہی نبھایا ہے اور اسی طرح سے ہوا ہے جس طور سے انہوں نے کہا ہے. تیسرے دن وہ مردوں میں سے جی اٹھے ہیں. بہت سارے لوگ خداوند یسوع مسیح کی سٹیٹمنٹ سے بھی کنفیوز رہتے ہیں. اسی طور سے جو مختلف سٹیٹمنٹس خداوند یسوع مسیح نے دی ہیں, تقریباً 17 مختلف سٹیٹمنٹس خداوند یسوع مسیح نے دی ہیں. کبھی تیسرے دن کا ذکر کیا, کبھی 3 رات دن کا ذکر کیا, کبھی 3 دن کے بعد کا ذکر کیا, لیکن یہ ان کے کلچر میں ایک اصطلاح استعمال کی جاتی تھی جس کو خداوند یسوع مسیح نے استعمال کی, اور اس پہ کبھی بھی نہ شاگردوں نے اعتراض کیا نہ یہودیوں نے اعتراض کیا, کیونکہ وہ اس کی بات کو بالکل اس طرح سے سمجھ رہے تھے جس طرح سے وہ بات
کر رہا تھا. بہت ضروری تھا یہ بات سیکھنا, آپ تک پہنچانا. آگے بڑھیں گے, طارق وارث صاحب سے جانیں گے. طارق صاحب, آپ ہماری رہنمائی فرمائیں, اس ٹیکسٹ میں سے جو خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کا پروف جو ایک اسٹرانگ ثبوت کے طور پہ ہم دے سکتے ہیں, اس میں رہنمائی فرمائیں. یہ جو عبارت ہے اس لحاظ سے بڑی دلچسپ ہے کہ سبت کا دن گزرنے کے بعد, یعنی اتوار کی صبح, اور جیسا کہ اینتھنی لیمول صاحب نے بیان کیا, غالباً یہ 5, 5:30 یا 4:45 بجے کا وقت تھا. عورتیں قبر پر آتی ہیں اور آنے سے پہلے وہ پریشان ہیں کہ پتھر کو قبر کے منہ سے ان کے لیے کون لڑھکائے گا, جس سے یہ واضح اشارہ ملتا ہے, اور پادری وسیم اللہ کھوکھر صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا, کہ وہ یہ توقع نہیں کر رہی تھیں کہ یسوع مسیح مردوں میں سے زندہ ہونے کو ہے. ان کی پریشانی کہ قبر کے منہ سے کون ان کے لیے پتھر کو لڑھکائے گا, اس بات کی طرف اشارہ ہے. پھر پہلی آیت میں یہ بھی ہے کہ وہ تو خوشبودار چیزیں باقاعدہ خرید کر لائیں تاکہ اس پر ملیں, یعنی کہ وہ توقع کر رہی تھی کہ لاش ہوگی اس قبر میں پڑی ہوئی اور وہ اس پر وہ خوشبودار چیزیں ملیں گی. لیکن وہ حیران ہوئیں کہ جب جو تھا پتھر جو تھا وہ قبر سے لڑھکا ہوا تھا, یعنی کہ یسوع مسیح قبر میں نہیں تھا, وہ جی اٹھا تھا اور قبر خالی تھی, اور وہ بہت زیادہ حیرانی کا شکار ہوئیں. اس بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ اناجیل میں یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی جو پہلی وٹنسز یا جو پہلے گواہ ہیں وہ یہ عورتیں ہیں, جن میں ہمیں ذکر ملتا ہے مریم مگدلینی ہے, یعقوب کی ماں مریم ہے, اور سلومی ہے. یہ بات اس لیے ایک بڑا اہم اور غیر معمولی ثبوت ہے, آپ کے سوال کے مطابق پروف ہے, کہ یہ بات من گھڑت نہیں ہو سکتی. اس کو نا میک اپ یعنی کرافٹ اپنے طور پہ یہ ایجاد نہیں کی جا سکتی, کیونکہ یہودی معاشرے میں عورت کو عدالت میں گواہی کی اجازت نہیں تھی. تو اگر یہ من گھڑت کہانی ہوتی تو پھر وہ عورتوں کی جگہ کسی اور معتبر یا جو ہے نامور یا قابل اعتبار ان کے سماج کے اعتبار سے شخصیت کا نام لیتے. لیکن عورتوں کا ذکر آنا کہ وہ یسوع کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی پہلی گواہ ہے یا گواہان ہے, یہ ایک ایسی بات ہے جو ان کی ثقافت, سماج اور جو عدالتی نظام تھا اس کے بالکل الٹ تھی. اور اس سے ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ کیسے خدا کے منصوبہ نجات میں عورتوں کا کردار ہمارے سامنے آ رہا ہے. پاکستان میں عام طور پر عورت کو کمتر سمجھا جاتا ہے. کئی دفعہ لوگ عورت پر یہ بھی الزام دیتے ہیں کہ اس کے وسیلے سے گناہ دنیا میں داخل ہوا, لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ گناہ سے نجات بخشنے والا یسوع مسیح بھی ایک عورت کنواری مقدسہ مریم کے وسیلے سے دنیا میں آیا. اور پھر جب یسوع المسیح کی مصلوبیت ہوئی تو شاگرد تو انہیں چھوڑ کر بھاگ گئے تھے, لیکن عورتیں مسیح کے ساتھ سفر کرتی ہوئی یروشلیم تک آئیں اور اس کی صلیب کے پاس کھڑی تھیں. اور اب جب کہ شاگرد ڈر کے مارے کمروں میں بند ہیں, عورتیں ہیں جنہوں نے دلیری کا مظاہرہ کیا ہے اور وہ جو ہیں قبر پر گئی ہیں. اور میرا جو پوائنٹ جس طرح میں نے پہلے بھی بیان کیا کہ یہ بات اس لیے بڑی انقلابی ہے کہ یہاں عورتوں کا قبر کو خالی پانا اور یسوع کو کے جی اٹھنے کا ان کو پتہ چلنا کہ یہودی معاشرے میں ایک جو راست باز یہودی مرد تھا, جب وہ 3 بار دن میں دعا کرتا تھا تو وہ خدا کا شکر ادا کرتا تھا کہ تیرا شکر ہو, تو نے مجھے غلام پیدا نہیں کیا, تو نے مجھے غیر قوم پیدا نہیں کیا, اور تو نے مجھے عورت پیدا نہیں کیا. اور دیکھیں یہاں عورتیں یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی گواہ بن کر ہمارے سامنے آ رہی ہیں. پھر ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ پہلی صدی میں
यहूदी ख़वातीन की जो ज़िंदगी थी बहुत सी पाबंदियों से भरपूर थी। जब घर में वो खाना खाने लगते थे तो उनका दस्तूर ये था कि ख़ानदानी खाने के वक्त औरत बरकत की दुआ नहीं कर सकती थी। लेकिन यहाँ कायनात की सबसे अजीम बरकत यस्सु मसीह का जी उठना, उसकी गवाही का शर्फ जो है औरतों को हासिल हुआ है। और मैं इसलिए कहता हूँ कि यस्सु मसीह का जी उठना कायनात की तारीख की सबसे अजीम बरकत है। उसकी वजह यह है कि अगर यस्सु मसीह मुर्दों में से ज़िंदा ना होते तो वो एक झूठे नबी और उस्ताद कहलाते, उनका खुदा का मसीह होने का दावा झूठा साबित होता। लेकिन यस्सु अल मसीह को तीसरे दिन मुर्दों में से पाक रूह की कुदरत के वसीले से जिंदा करके खुदा ने ये साबित किया कि यस्सु ही मौद मसीह है, यस्सु मसीह ही मुनज्जी आलम है और यस्सु मसीह ही खुदावंदों का खुदावंद और बादशाहों का बादशाह है। और चूंकि वो मुर्दों में से जी उठा इसलिए आज मसीहत कायम है। और औरतें जो हैं इस वाक़े की जो हैं गवाह थीं। फिर उसके अलावा उस ज़माने में औरतों के ताल्लुक से ये भी था कि जब किसी यहूदी घर में लड़की पैदा होती थी तो खुशी नहीं मनाई जाती थी, बल्कि बाज़ औक़ात लड़की की पैदाइश पर गम और दुख का इजहार किया जाता था। इस ताल्लुक से एक स्कॉलर हैं डॉक्टर डेविड इंस्टन ब्रूअर, ये इंग्लैंड में कैम्ब्रिज में टिंडेल हाउस में स्कॉलर हैं और उन्होंने इस ताल्लुक से काफ़ी तहकीक की है। इसलिए यस्सु मसीह की ज़िंदगी और ख़िदमत में औरतों के ताल्लुक से उनका रवैया बिल्कुल मुतज़ाद था। यस्सु मसीह की बशारती टीम में औरतें शामिल थीं। यहूदी रबी औरतों को शागिर्द नहीं बनाते थे। यस्सु मसीह जो है एक वाहिद रबी था जिसने औरतों को ना सिर्फ अपनी शागिर्दियत में लिया बल्कि वो यस्सु मसीह के साथ सफ़र भी करती थीं। वो औरतें जो मालदार घरानों से थीं वो यस्सु की खिदमत को सपोर्ट करती थीं। यस्सु की मसलूबियत के वक्त औरतें मौजूद थीं। और फिर जैसा कि पहले अर्ज़ किया कि जब वो ज़िंदा हुआ है तो मसलूबियत और मौत के बाद सबसे पहले औरतों ने यस्सु मसीह को ज़िंदा देखा और उसके जी उठने की गवाह बनी। सो हमारे समाज में अगर औरतें ये प्रोग्राम देख रही हैं बहनें, तो उनके लिए इसमें बड़ी दिलेरी और तसल्ली की बात है कि आप भी उसी तरह से खुदावंद यस्सु मसीह की आज के ज़माने में मसलूबियत और जी उठने की गवाह बने, जैसे पहली सदी में जो है मरियम मगदलीनी, याकूब की माँ मरियम, सलोमी और दीगर ख़वातीन थी। थैंक यू सो मच। बड़ी ही खूबसूरत बातें और इंतहाई बाबरकत बातें, और यकीनन खुदावंद यीशु मसीह ने ख़ातून का, औरत का जो मकाम खुदा ने दिया था उसको बहाल किया, रिस्टोर किया ख़ातून को। इसके लिए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हम लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए प्रोग्राम कलाम में रोशनी। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कलाम में रोशनी। ब्रेक पर जाने से पहले तारिक वारिस से बड़ी खूबसूरत बातें हमारे साथ शेयर कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे, रेवरेंड वसीमुल्लाह खोखर साहब से जानेंगे। सर, यहाँ पे पत्थर के बारे में ख़वातीन जो हैं वो परेशान हैं क्योंकि वो बहुत भारी है, वज़नी है। इस ताल्लुक़ से क्या इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, प्लीज़ शेयर कर दें। थैंक यू वेरी मच भाई साहब। बाइबल मुक़द्दस में एंथनी लेमिल साहब ने बड़ी तफसील के साथ एक बात बताई है, और वो ये है कि कई दफ़ा बाइबल की अंडरस्टैंडिंग के लिए हम अननेसेसरली निटी-ग्रिटीज़ में चले जाते हैं। खुदावंद यीशु मसीह जब भी कोई बात करते थे तो वो इवेंट्स को फोकस करते थे, और हम क्या करते हैं कि वो इवेंट्स को भूल कर जो थियोलॉजी है हम अपनी रिसर्च में लग जाते हैं। अब अगर मुझे नहीं पता कि यीशु मसीह कब जी उठे हैं, लेकिन ये तो पता है ना कि यीशु मसीह जी उठे हैं, अब हम इतना बड़ा ईमान छोड़कर कि यीशु मसीह जी उठे हैं, वो छोटे छोटे जी 3:05 पे जी उठे हैं, असल में बाइबल मुक़द्दस का जो फोकस है वो यीशु मसीह की
क़यामत के ऊपर है। सो यहाँ पर जब यीशु मसीह की क़यामत की बात हो रही है तो बीच में 3 चीज़ें बड़ी हायल हैं जब ये ख़वातीन बड़े जज्बे के साथ जा रही हैं। और मैं अक्सर इन ख़वातीन को अप्रिशिएट करने के लिए, जैसे पादरी तारिक साहब कर रहे थे, जज्बा उनका ये है कि कामिल मोहब्बत खौफ को दूर कर देती है। और उनके अंदर ये कोई खौफ नहीं है कि हमें कोई खुदावंद यीशु मसीह तक पहुंचने के लिए कोई रोक सकता है। लेकिन एक खौफ जो है वो ज़रूर था, और वो खौफ ये था कि 3 चीज़ें हैं जो बड़ी रुकावटें हैं और तीनों ही एस से शुरू होती हैं। और पहली चीज़ है स्टोन, दूसरी है सील, और तीसरी है सोल्जर्स। और ये तीनों ही एस से शुरू होती हैं। ये वो रुकावटें हैं जो ख़वातीन के सामने हैं। वो कहती हैं कि पत्थर कौन लुढ़काएगा, और दूसरी बात यह है कि वो सील गवर्नमेंट की सील है, और गवर्नमेंट की सील को अनरैप करना या उसको तोड़ना ये सजाए मौत के मुतरादिफ था। और फिर जो चार सिपाहियों की 4 चौकियां थीं, तकरीबन 16 सिपाहियों में से गुजर के जाना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। ये ख़वातीन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ख़वातीन, गैर मामूली ख़वातीन हैं जिन्होंने अपनी मोहब्बत के ज़ोर में ये सफ़र शुरू किया है। और ये हमारे लिए नाज़रीन बड़ी बहुत चैलेंज की बात है कि हम मसीही सफ़र शुरू करते हैं तो हम रुकावटों को देख के तो सफ़र ही छोड़ देते हैं। हम कहते हैं नहीं ये मसीही ज़िंदगी का सफ़र बड़ा मुश्किल है। लेकिन इन ख़वातीन के लिए ये सफ़र बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। क्यों? इनके अंदर ईमान इतना बड़ा था कि अपने हर सफ़र में, लेकिन ये मसाइल को डिस्कस करती जा रही हैं जो कि बड़ी विज़डम है। और जब आप ईमान में बढ़ते जाते हैं नाज़रीन, तो फिर खुदा आपकी रुकावटों को भी दूर करता चला जाता है। इनको तो अंदाज़ा भी नहीं था कि क्या होगा। अब ये जो 3 रुकावटें हैं उनमें से एक का इन्होंने जिक्र किया है कि हमारे लिए पत्थर को कौन लुढ़काएगा। अब पत्थर को मैं आपको बताना चाहूँ पत्थर क्या। पत्थर के लिए मेरे पास 3 बड़ी इंफॉर्मेशन है। पहली बात तो ये है कि पत्थर लगाना ये आसान था, हटाना ये मुश्किल था। उसकी वजह क्या है? इसकी शेप और इसका वज़न। अब ये जो पत्थर का जो डायमीटर है, जिसका जो मदार है, और ये 4 से 6 फुट का है। यानी जो होल है वो चट्टान में जो अरमितिया की कब्र थी उसका जो होल है उसमें वो 4 से 6 फुट है, जिसमें आसानी के साथ बंदा अंदर जा सकता है और अंदर जाके देख सकता है कि क्या है। सो ये जो मदार है ये 4 से 6 फुट का है। दूसरी बात यह है कि इसका जो वज़न, मैंने एक सॉफ्टवेयर चेक किया और उसका जो वज़न मैंने चेक किया वो 2 टन के करीब है। ये तकरीबन 50 मन के करीब ये बनता है जो उस पत्थर पे लगाया गया है। फिर उसके बाद यह है कि अगर उस पत्थर को हटाना है तो उसके लिए 20 आदमियों के ताकत की ज़रूरत है। यानी 20 आदमी अगर हों तो वो फिर कर सकते हैं। एक आपको पता बात में शुरू हुई थी यहूदियों में कि वो यीशु मसीह के शागिर्द आए तो वो उसकी लाश को चुरा के ले गए हैं। अरे भाई ये जो ताकत है, जो दरकार है वो 20 लोगों की है, और वहाँ शागिर्द जो वो 11 हैं। एक तो मर गया हुआ है, 11 शागिर्द हैं, और 11-9 कौन से लोग आएंगे जो उनकी हेल्प करेंगे और पत्थर को हटाएंगे। सो मैं आज अपने नाजरीन को इनकरेज करना चाहता हूँ कि पत्थर जो होते हैं, खुदावंद यीशु मसीह की कब्र के ऊपर पत्थर जो है उसको लड़काने की जरूरत नहीं है, वो खुद ब खुद लड़क जाएगा। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह के जो पावर ऑफ रेजरेक्शन है वो तो मुर्दों को जिंदा कर देती है। ये पत्थर कौन सी बात है। पत्थर अगर हटाना ही है नाजरीन तो उस कब्र से हटाएं जिसको यीशु मसीह ने कहा है कि पत्थर तुम हटाओ जिंदा मैं करूंगा। वो लाजर है जो शायद मेरे घर में मरा पड़ा है या आपके घर में मरा पड़ा है। वो यीशु का कलाम सुनेगा। यीशु ने कहा ए लाजर कब्र से बाहर आ जा। ये वो पत्थर है जिसको हटाने की जरूरत है। और आज अपने घर का लाजर देखें कि कहां वो मरा पड़ा है। यीशु का कलाम सुनेगा तो वो बाहर आ जाएगा। प्रेज़ गॉड। सो ये पत्थर की बशारत है। सो इसलिए आज हमें उस पत्थर को हटाना है जो शायद मेरे सामने या किसी ऐसे मसीही के सामने है जो उसकी मसीहत में रुकावट है। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ेंगे और एंथनी लेमुल साहब से जानेंगे। सर, 6ठी आयत लिखा है, उसने उनसे कहा ऐसी हैरान ना हो ख़वातीन से
तुम यीशु नासरी को जो मसलूब हुआ था ढूंढती हो, वो जी उठा है, वो यहाँ नहीं है, देखो ये वो जगह है जहाँ उन्होंने उसे रखा था। इसकी वजाहत फरमा दें। बड़ी खूबसूरत आयत है, और ये मैं समझता हूँ मसीह का जी उठना हमारे ईमान की बुनियाद है। और अगर मसीह जी ना उठता तो हमारी मुनादी, हमारी गवाही सब बेफायदा है, जो जैसे पौलुस फरमाते हैं। देखिए, पहली तो बात यह है कि जिस तरह जिक्र किया, कुछ बातचीत चल रही है, तुमा मौजूद नहीं जब मसीह पहली मरतबा ईस्टर पर नजर आते हैं। तुमा किधर था? कलाम नहीं बताता, लेकिन तुमा के जब आप तहकीक करेंगे, उसके करैक्टर को जानेंगे, वो एकदम बात नहीं मानता था। और कुछ उलमा कहते हैं कि वो बाजार मार्केट में तहकीक कर रहा था कि अफवाह उड़ी है कि चोरी हो गया, लाश चोरी हो गई है भी कि नहीं। क्योंकि तुमा की आप तहकीक करें, कई दफ़ा शागिर्द डरते हैं पूछने के लिए। मत्ती 23, 24, 25 पढ़े, जब वो हैकल से निकलते हैं, तुमा सवाल करता है। जब वो मुनादी कर रहा है कि मैं जाता हूँ, जगह तैयार करता हूँ, तो तुमा सवाल करता है, किधर जा रहा है, हमें तो मालूम नहीं। तो ये एक डर था। अब इधर एक बड़ी जो खूबसूरत बात आपको मिलती है, 3-4 पॉइंट है, बड़े दिलचस्प हैं। पहली बात है, वो कहता है हैरान ना हो। ठीक है, उनके लिए शौक था, है ये तो लाश नहीं अंदर। यस्सु नासरी कौन, कहाँ का, वो उसकी आइडेंटिफिकेशन थी। यानी वो कहने की कोशिश कर रहा है कि कोई वो यस्सु जो नासरी का, यानी वो यस्सुल मसीह, कोई आम कोई और कोई स्टोरी नहीं है। ही इज द जीसस ऑफ नाजरत। तो ये बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट है उस फरिश्ते की। दूसरी बात कहता है जो मसलूब हुआ था, यानी वो यस्सु जो नासरी का है, और कौन है जो मसलूब हुआ था। अब ये ताज़ी खबर थी। ठीक है, फिर वो जो अगर आगे बढ़े, वो कहता है वो यानी वो नासरी, वो यस्सु नासरी जो मसलूब, वो जी उठा है। वो जगह देखो, 3 मरतबा वो इस्तेमाल किया गया, वो यहाँ नहीं है। ठीक है, और ये मैं समझता हूँ मरकज़ का रिकॉर्ड बड़ा दिलचस्प है, बहुत ठोस है। मैं समझता हूँ कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबक है। यस्सु ने अपना वादा कायम रखा। बार बार उसने कहा, आपने कोट किया 17 मरतबा। तो मतलब अगर वो ये ना करता तो उनका जो यहूदी कसौटी थी एक नबी की, एक खुदा के बंदे की, वो उस पर पूरे ना उतरता। ठीक है, उस पर फतवा लग जाता। तो उसने अपना प्रॉमिस पूरा किया। दूसरी बात यह है कि आज वो कब्र खाली है। देखो ये जगह यहाँ नहीं है। तो हमारे लिए वो बादशाह जिंदा बादशाह है, किंग ऑफ किंग्स, द लिविंग किंग। और ये हमारे ईमान को, मसीह ईमान को तकवीत देता है। फिर वो कहता है, दूसरी बात क्या है कि उसके जी उठने के बायस वो जगह खाली है, कब्र खाली है। आज उसी कुदरत के साथ वही ताकत खुदा की जिसने मसीह को जिंदा किया, हमें भी आखिरी दिन मुर्दों में से जिंदा करेगा। ये बहुत बड़ा इस्तिकाक है, हम उसके लिए खुदा के शुक्रगुजार हैं। मैं एक और बात कहना चाहता हूँ जो बड़ी सिग्निफिकेंट है। 2 शख्सियात कलाम में जिंदा उठाई गई हैं, एलिया और हनूक। इन दोनों ने मौत नहीं चखी। यीशु मसीह मुआ, जी उठा और आसमान पर उठाया गया। यहूदी दस्तूर के मुताबिक और नियर ईस्टर्न कल्चर के अंदर वो नबी जो जिंदा उठाया जाता वो दोबारा आएगा। आज भी आप सिनेगॉग में जाएं, इबादत खाने में यहूदी कुर्सी खाली रखी होती है एलिया के लिए। जब आप घर में फसा मनाते हैं, आखिरी फसा जो यहूदी दस्तूर के मुताबिक, खरूज के मुताबिक 12 बाब के, एक कुर्सी खाली रखते हैं एलिया के लिए कि उनका ईमान है कि वो आएगा। तो मेरे मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए कि मसीह का जी उठना, आसमान पर उठाया जाना हमारे लिए बहुत तकवीत है। और मैं चैलेंज करूँगा कि अगर हम मसीह के वसीले से अगर हम मुस्तफ़ीद नहीं हुए, कोई फ़ायदा नहीं। मैं अक्सर एक मिसाल देता हूँ, मैं कहता हूँ पासपोर्ट है तो आप ट्रैवल कर सकते हैं अगर पासपोर्ट है। यस, आप नहीं, वो एक डॉक्यूमेंट है, पर ट्रैवल कैसे करेंगे? वीज़ा होगा तो ट्रैवल करेंगे ना। पासपोर्ट चाहे पड़ा हो आपके पास। तो मेरी दुआ है, मैं कहता हूं कि हमारी जिंदगी का वीज़ा स्टार्ट होता है पैदाइश से। हमारे जिंदगी का पासपोर्ट का आगाज है हमारी पैदाइश से, और जिस दिन हम मर जाएंगे हमारा पासपोर्ट एक्सपायर होगा जिंदगी का। और अगर मेरी जिंदगी के पासपोर्ट में मसीह के जी उठने की और नजात की मोहर नहीं, वीज़ा नहीं, मैं खुदा की बादशाह में दाखिल नहीं हो सकता। तो हमें क्या फ़ायदा है इसको गर्दानने का, जी वो जी उठा, हमें क्या फ़ायदा मसलूब हुआ गर्दानने का, जब तक हमारी ज़िंदगी में नहीं है। तो मेरा एक चैलेंज है कि इस जिंदा मसीह को आप अपनाएं।
थैंक यू सो मच। और हमारे यहाँ ये बहुत बड़ा एक अलमिया है नामी मसीही होने का। नाम के साथ मसीह लगाना बड़े फ़ख्र से हम कहते भी हैं, लगाते भी हैं, और बाद में पकड़े शराब में जाते हैं, कोई किसी ख़राबी में पकड़ा जा रहा है। इंतहाई शर्मनाक, अफसोसनाक बात है। हम मसीह के लिए, बाइबल के लिए लड़ने मरने को तैयार हैं, लेकिन दुआ करने को, इबादत करने को और उसकी रास्तबाजी के काम करने को तैयार नहीं है। ये सोचने की बात है कि हम लड़ने के लिए क्यों तैयार हैं, मरने के लिए क्यों तैयार हैं बाइबल के लिए, बाइबल पे अमल करने के लिए क्यों तैयार नहीं है। सबसे बड़ी बात यही है कि हम जो कुछ इसमें लिखा है उस पे अमल पैरा हो जाएं। आप बाइबल के लिए मर जाएंगे तो हमेशा की ज़िंदगी नहीं पाएंगे। अगर हमेशा की ज़िंदगी के लिए आपने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल नहीं किया और उसकी रास्तबाजी को अपनी ज़िंदगी में नहीं अपनाया, उस वक्त तक आप हमेशा की ज़िंदगी नहीं पा सकते हैं। चाहे जितनी मर्ज़ी दफ़ा आप कह लें कि मैं मसीह के लिए ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी करने वाला काम है वो करें, ना कि इस तरह से लड़ने मरने के लिए तैयार हों। आगे बढ़ेंगे और तारिक वारिस साहब से जानेंगे। तारिक साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। यहाँ पे ज़िक्र है, एक फ़रिश्ता खड़ा है जो कब्र में मौजूद है। एक दूसरी जगह ज़िक्र है कि 2 फ़रिश्तगान हैं। एक तो पहली बात आप वाज़े करेंगे कि नाज़रीन को समझने के लिए आसान हो कि अगर कभी किसी राइटर ने इस तरह से ज़िक्र किया है, जैसे बरतुमाई के वाक़े में भी ऐसा सिनॉप्टिक गॉस्पल्स में दिखाई देता है, एक लिखता है कि 2 थे और एक लिखता है कि एक बात कर रहा जो बरतुमाई है उसका ज़िक्र कर दिया है। तो कभी ऐसे वाक़यात हम पढ़ते हैं तो हमें किस तरह से इस नतीजे तक पहुंचना चाहिए। और दूसरी बात ये वाज़े कर दें कि कब्र में दरअसल 2 हैं या एक फ़रिश्ता है। हाँ जी, ये एक बड़ा दिलचस्प सवाल है, और बुनियादी तौर पर इस ताल्लुक़ से ये है कि जो लोग बाइबल मुक़द्दस की जो तारीख़ी सदाकत है, इसकी जो हिस्टोरिकल ट्रूथफुलनेस है, या इसकी जो हिस्टोरिकल रिलायबिलिटी है, तारीख़ी एतबार से क्या कलाम मुक़द्दस काबिल एतबार है या नहीं, उस पर तनकीद करने वाले लोग ये सवाल उठाते हैं कि जब आप मत्ती रसूल की इंजील और मरकस रसूल की इंजील, ये दोनों अनाजील पढ़ते हैं तो आपको एक फ़रिश्ते का ज़िक्र मिलेगा। जब आप मुक़द्दस लूका और फिर यूहन्ना रसूल की जो इंजील है वो दोनों अनाजील पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको 2 का ज़िक्र मिलेगा। तो कई लोग हैं वो इसको पेश करते हैं एज अ कॉन्ट्रडिक्शन कि यहाँ पर तज़ाद नज़र आ रहा है, या पहली 2 अनाजील और जो उसके बाद की 2 अनाजील हैं उनमें इख्तलाफ नज़र आ रहा है। इसका सादा और मुख्तसर और आसान जवाब ये है कि जिस तरह से मुझसे पहले मोजिज़ भाइयों ने ज़िक्र किया, पादरी वसीमुल्लाह खोखर साहब ने इस बात को हाईलाइट किया कि हमें जो इवेंट है, वाक़या है, उस पर फोकस करना है, ना कि बाज़ औक़ात उसकी जो अननेसेसरी डिटेल्स, गैर ज़रूरी तफासील है, हम उनमें फंस जाएं। तो यहाँ पहली बात तो ये ज़हन में रखनी है कि जो मतन का बुनियादी पैगाम है वो ये है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, ये बुनियादी बात है। और दूसरी बात ये जो अपना सर एंथनी लैमुल साहिब ने कही कि ये एक हिस्टोरिकल इवेंट है, ये एक तारीख़ी वाक़या है, ये कोई अफसाना या किसी को ख्वाब नहीं आया, मैंने ख्वाब में यीशु को ज़िंदा देखा है। वो लिटरली गैर फ़ानी जलाली बदन के साथ तारीख़ी तौर पर कब्र में से निकला है। आज इस तरह सियासत में कहा जाता है जी भुट्टो हमारे दिलों में आज भी ज़िंदा है, तो यीशु मसीह सिर्फ दिलों में ज़िंदा नहीं है, हाँ वो दिलों में ज़िंदा है, लेकिन वो हकीकी तौर पर तारीख़ी एतबार से गैर फ़ानी जलाली बदन के साथ ज़िंदा हुआ। तो पहले तो इस बिग पिक्चर को ज़हन में रखना है। अब उसके बाद जब हम डिटेल में आते हैं तो इसमें बड़ी सादा और आसान बात यह है कि जब मत्ती और मरकस की अनाजील में ये लिखा है ना कि वहाँ पर एक फ़रिश्ता था, तो ये नहीं लिखा कि सिर्फ एक फ़रिश्ता था। और जब आप लूका और यूहन्ना में जाते हैं और वहाँ 2 का जिक्र है तो ये एक मंतकी बात है कि 2 तब भी होते हैं जब उससे पहले 1 हो। तो इसलिए यहाँ पर जो मुसन्निफ़ीन हैं
روح القدس کی رہنمائی میں جس پوائنٹ کو وہ ہائی لائٹ کرنا چاہتے تھے اس کی روشنی میں جتنی ضرورت تھی اتنا انہوں نے ذکر کیا ہے. مثلاً متی اور مرکز کے نزدیک جس بات کو نمایاں کرنا تھا وہ یہ تھی کہ فرشتے نے قبر کے جو باہر پتھر تھا اس کو لڑھکایا. جیسا پہلے ذکر کیا جا چکا ہے کہ وہاں تو اتنے مرد تو تھے ہی نہیں کہ وہ اس کو لڑھکا سکتے. اس کے لیے سپر نیچرل مافوق الفطرت انٹرونشن مداخلت کی ضرورت تھی تو وہ خدا نے اپنے فرشتے کے ذریعے سے کی. سو پتھر کو لڑھکانے والا ایک فرشتہ ہے. لیکن لوکا اور یوحنا کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر قبر کے اندر جو ہے یا جب مسیح یسوع کا بدن اٹھا ہے تو اس ایک اور بھی فرشتہ وہاں پر موجود تھا. سو متی اور مرکز کا یہ کہنا کہ ایک فرشتہ ہے اس بات کی تردید نہیں ہے کہ کوئی اور نہیں تھا. انہوں نے صرف اس ایک کا ذکر اس لیے کیا ہے کیونکہ ان کے انجیلی بیان کے لیے اسی کا ذکر کرنا مناسب اور درکار تھا. تو اس لیے یہ کوئی اختلاف نہیں ہے. ہر جو ہے انجیل نویس نے پاک روح کی ہدایت سے اپنے زاویہ نگاہ کے مطابق جو ہے انجیلی بیانات کو تحریر کیا اور جس نقطہ نظر کو وہ پیش کرنا چاہتے تھے اس کے مطابق واقعات کا جتنا بیان درکار تھا اتنا انہوں نے کیا ہے. تھینک یو سو مچ. اور ویسے بھی طارق صاحب مقدس لوکا اور مقدس یوحنا نے اگر دو کا بھی ذکر کیا ہے تو جو کام وہ کر رہا ہے یا جو وہ بات کر رہا ہے تو انہوں نے ایک ہی کا ذکر کیا. بات تو ایک وقت میں ایک ہی کر رہا ہے اور اسی بات کو مقدس متی اور مقدس مرکس نے بھی واضح کیا ہے. سو ناظرین ہمیں کسی طرح سے کوئی کنٹراڈکشن دکھائی نہیں دیتا, لیکن اگر کبھی آپ کو ایسا لگے کہ بائبل مقدس میں کوئی کنٹراڈکشن ہے, تضاد ہے, تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ بائبل مقدس میں کوئی تضاد ہے. ہاں ہماری سوچ میں تضاد ہو سکتا ہے, ہماری سوچ محدود ہے اور اس طرح سے ہم چونکہ سیکھ نہیں پاتے ہیں. بہت دفعہ ہمیں بائبل مقدس کی سچائیوں کی تصدیق بائبل مقدس ہی سے مل جاتی ہے. سو بہت ضروری ہے کہ ہم ریسرچ کریں, سیکھیں. اس سے پہلے کہ رائے قائم کریں اس سے پہلے ضروری ہے کہ ریسرچ کریں, سیکھیں, جانیں, تاکہ اس کے بعد ایک مستند رائے قائم کی جا سکے. اگر آپ سیکھتے نہیں, جانتے نہیں اور اس سے پہلے کہہ دیتے ہیں کہ بائبل بدل گئی ہے اور بہت سارے آپ کے الزامات ہیں, تو اس کی نہ تو آپ کو کوئی ہم شہادت دے سکتے ہیں کیونکہ ذہنوں کو اس طرح سے تبدیل ہم نہیں کر سکتے ہیں جس طور سے ذہن بگڑے ہوئے ہیں یا کہہ لیں کہ معاشرتی طور پہ بگاڑ آیا ہوا ہے. سو بہت ضروری ہے کہ آپ پہلے ریسرچ کریں, دوسری بائبل بھی لے آئیں جو حقیقی آپ کے پاس ہے, پھر آپ ضرور کہیں کہ بائبل بدل گئی ہے. اس کے بغیر کہنا جو ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے ہوا میں کوئی بات کی جا رہی ہے. سو بہت ضروری ہے, بڑی اچھی رہنمائی دی ہے طارق صاحب نے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سر آپ کے لیے. تھینک یو. تھینک یو. ناظرین ہمارا ایمان ہے کہ آپ سب نے ضرور آج کے پروگرام کے وسیلے سے برکت پائی ہے اور کچھ لوگ ہمیں ایسا فیڈ بیک دیتے ہیں کہ ہمیں گھر بیٹھے سیمنری کرنے کا موقع مل رہا ہے. اینتھنی لیمل صاحب بھی ایک پہلی دفعہ آئے, اس کے بعد انہوں نے اپنی ہیپینس کا اظہار کیا کہ وہ بڑے خوش ہیں اس پروگرام میں آ کر کیونکہ بڑا ایک مؤثر بابرکت پروگرام ہے. وسیم صاحب بھی اس تعلق سے کہتے رہتے ہیں, تو اس کے لیے ہم خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں اور آپ سب بھی اس سے ضرور مستفید ہوتے ہیں, ہمارا ایمان ہے. اور ہم اس بات پہ بھی ایمان رکھتے ہیں کہ آپ بہت سارے اور لوگوں کو بھی خدا کا کلام سکھا رہے ہیں اور اسے شیئر کر رہے ہیں تاکہ زیادہ لوگوں تک خدا کا کلام پہنچ سکے. ابھی بھی اس پروگرام سے متعلق آپ کا کوئی سوال ہو, اسکرین پہ دیے گئے نمبرز ڈائل کریں, اپنا سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں. کوئی دعا یا درخواست ہو ضرور دیں اور کوئی ٹیسٹیمنی, کوئی گواہی ہو ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں. اسی طور سے ناظرین آپ ان تمام پروگرامز کو یوٹیوب پہ واچ کر سکتے ہیں. یوٹیوب پہ واچ کرنے کے لیے برکت ٹی وی آفیشیل کے نام سے ہمارا چینل ہے, ضرور اسے سبسکرائب کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ خدا کے کلام کو سیکھ سکیں. آئندہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے برکت ٹی وی. گاڈ بلیس یو آل.